देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं ऐसी कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। One should know and remember that only due to high depression, people commit suicide. There is no measurement of depression for what depression happens. But when depression reaches extreme point, one could not stop for suicidal death. It may be due to financial hurdles, may be due to failure of love affairs, may be due to ignoring attitude of near and dear ones. It may be due to some other personal reason. It may be that one's economical condition and other factors are sound, but he or she is depressed too much for some other reason. So please be cautious and attentive to your near and dear ones. Otherwise, you will not get any opportunity to repent. Here is such an incident when a mother gives poison to her only 1-year-old child and then commits suicide by hanging herself. She was an employee of Adda with a sound economical condition. हीरापुर पुलिस स्टेशन के राधानगर रोड के निवासियों ने मंगलवार सुबह एक दुखद घटना देखी। बेटे को जहर देने के बाद मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबर सुनते ही एडीडीए के अध्यक्ष तापस बनर्जी मौके पर पहुंचे और अपनी संवेदना व्यक्त की। मृतक के बहनोई कल्याण माझी ने कहा कि उसकी शादी हीरापुर के रिवरसाइड में रहने वाले 31 वर्षीय बैसाखी माझी के साथ 3 साल पहले हीरापुर थाने के राधानगर रोड में हुई थी। बैसाखी आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के कार्यालय में काम करती थी और उसका भाई अनुपम माझी कटवा में एक राज्य के स्वामित्व वाले बैंक में काम करता है। उनका 1 साल 1 महीने का एक बेटा अंतरिप माझी था, जो जन्म से ही बहरा और गूंगा था। कुछ दिनों तक डॉक्टर की सलाह पर बेड़ा की जांच की गई। सोमवार को बेड़ा परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद यह पता चला कि इसकी कान पूरी तरह से खराब है। मशीन लगाने के बाद हो सकता है उसे सुनाई दे। रिपोर्ट मिलने के बाद लड़का मानसिक अवसाद में टूट गया। मंगलवार की सुबह जब घर का दरवाजा नहीं खोला जा रहा था तो दरवाजा तोड़कर देखा गया कि बैसाखी लटकी हुई थी और उसका मृत बेटा बिस्तर पर पड़ा था। पुलिस को सूचित करने के बाद पुलिस आई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। आत्महत्या करने से पहले बैसाखी ने सुसाइड नोट उल्लेख किया था कि उसने अपने बेटे को मार दिया है और आत्महत्या कर ली क्योंकि वह विकलांग था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिला अस्पताल में शव परीक्षण किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लड़के के गला दबाकर हत्या कर दी और खुद फांसी लगा ली, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाया गया। एडीडीए के अध्यक्ष तापस बनर्जी ने मृतक के घर और जिला अस्पताल में मौजूद परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह 3 दिन पहले बैसाखी में मिले थे और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। उसकी शादी में भी मौजूद थे। बैसाखी ने उन्हें अपने बेटे की कठिनाइयों के बारे में नहीं बताया था। সুসাইড করতে হলো বাচ্চাটার কানে বললো 90% খারাপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো সেটার জন্য ফ্লাশ স্টেশনে ভুগছিল এবং রাত্রে ঘটনাটা ঘটে গেছে, ব্যাস আর কিছু না। সুইসাইডের নোটে সেটাও উল্লেখ করা আছে। নোট দেওয়া আছে। হাজব্যান্ডের নাম কি? অনুপম মাঝি। উনি কি করেন? উনি ব্যাংকে সার্ভিস করেন। আচ্ছা, এরকম কোনো পারিবারিক অশান্তি কোনো রকম মানে নেই, মানে ওই মেয়েটি ছিল ওর শাশুড়ির মেয়ের থেকেও বেশি ছিল। ওরকম বাপের বাড়িতে আদর পেয়েছি, যত্ন পেয়েছি কিনা জানি না। কালকে যখন ঘটনাটা ঘটে উনি ছিলেন না বাড়িতে? না, উনি পাটোয়াতে সার্ভিস করেন। কীভাবে আত্মহত্যা করলেন? যেটা দেখা হ্যাং অবস্থায় ছিল আর বাচ্চাটা শুয়ে ছিল। আপনার নাম দাদা? আমার নাম কল্যাণ কুমার মাঝি। আপনি কে হন? আমি দাদা। কার দাদা? আমি ছেলের মানে আমার বৌমা হচ্ছে, ভাইয়ের বউ। এরকম কোনো ঘটনা আমরা আগে শুনিনি বা জানিও না। ব্যাপারটা হচ্ছে যে উনি এডিডির সঙ্গে যুক্ত, আমিও এডির সঙ্গে কন্ট্যাক্টারি করি। তো যার আজকে সকালবেলা 9টার সময় শুনলাম যে সুইসাইড করেছে বাচ্চার সময়, মানে এটুকুই জানা, অন্য কিছু জানা নেই। তো ওদের ঘরের মধ্যে কি কোনো পারিবারিক অশান্তি বা না না না, সেরকম কোনো অশান্তি বা সেরকম কোনো আমরা কোনোদিনও শুনিনি আজও। পুরো পিসফুলি পরিবার। তো
তো আপনি মানে আপনার কি পরিচয়? আমার পরিচয় বলতে আমার চেনাশোনা, আমার প্রতিবেশী, এছাড়া আমি এডিটির সঙ্গে যুক্ত, আমি কন্ট্যাক্টারি করি এডিটিতে। হয়েছিল ব্যাপারটা হচ্ছে বাচ্চাটার কানে একটু প্রবলেম হয়েছিল, সেটা তার আগের দিনে একটা টেস্ট হয়েছে, ও রিপোর্টে বলেছে যে এই কানের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। এরপরে বেড়া টেস্ট একটা আছে, বেড়া টেস্টটা হচ্ছে সবথেকে মানে সর্বোচ্চ টেস্ট, সেইটা আসানসোলে আমরা তারপর করি কালকে আর কি। সেই টেস্টে লিখেছে যে 90% কানের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবং ওখানে বলেছিল যে একটা যন্ত্র দেবে, ওই যন্ত্রটা দিলে ও শুনতে পাবে। হ্যাঁ, শুনতে পাবে এবং নর্মাল কথাবার্তা বলবে, সব কিছু। 1 বছর মাত্র তো বয়স। হ্যাঁ, তো এর মধ্যেই ও ডিসিশান এইসব ফালতু নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, আপনারা নিচেই ছিলেন, আপনারা কিভাবে জানলেন? আমরা 8:30, ও তো অফিস আছে, 8:30 বেজে গেছে যখন, নিশ্চয়ই অফিসের টাইম হয়েছে, তার আগে 8টার সময় উঠে। হ্যাঁ, তো 8:30 যখন বেজে গেছে, উঠাতেই হবে। এবারে ধাক্কা মারছি দরজা, হ্যাঁ, খুলছে না কিছুতে, কোনো আওয়াজ সাড়া শব্দ কিছুই পাচ্ছি না। তখন আমাদের ডাউট হলো, আমরা পাচ্ছি না খুলতে, তখন ওর বাপের বাড়িতে ফোন করি। ওরখানে ওর দাদা এসে পরে জোরে ধাক্কা মেরে, ইয়াং ছেলে তো, জোরে ধাক্কা মেরে খুলে দিল চিটকানিটা। হ্যাঁ, তারপরে দেখলো এই ঘটনা ঘটেছে। তাই একসঙ্গে কালকে খাবার খেয়েছেন, কিছু বুঝতে না না, আমরা সিমটম কোনো কিছুই বুঝতে পারিনি, আমরা সিমটম কোনো কিছুই বুঝতে পারিনি যে এরকম মনে মনে এইসব কমিয়েছে। নিজে নর্মাল খেয়েছে, বাচ্চাকে খাইয়েছে। হ্যাঁ, আমরা কি করে বুঝবো যে এইসব এত ফন্দি বেড়েছে? তারপরে ইয়ের সঙ্গে, ওর হাজব্যান্ডের সঙ্গে কথাও বলেছে অনেকক্ষণ। আপনার ছেলে মানে কোথায় ছেলে? আমার ছেলে কাটোয়ায় চাকরি করে, ব্যাংকে। ব্যাংকে। আপনার নাম? আমার নাম ধর্মদাস মাঝি। কানের একটু প্রবলেম ছিল বাচ্চাটার, একটু মানে 90% মতো কানে শুনতে পাবে না, সেই দিয়ে বোন একটু আপসেটে ভুগছিল, একটু আপসেট ছিল। সকালবেলায় এসে দেখি যে দুজনে মৃত অবস্থা। এমনি কোনো পারিবারিক অশান্তি রয়েছে? না, পারিবারিক কোনো অশান্তি ছিল না। ওই কানের বাচ্চাটার জন্য ফ্রাস্ট্রেশন বলছেন, হ্যাঁ, তোমাকে জিজ্ঞেস করা আছে? তাহলে আপনি কখন খবর পেলেন? খবর আজ সকালে কটায়? সকালে খবর পেয়ে মানে আমি যাই, মানে বলছিল যে দরজা খুলছে না। এসে আমি বাড়ি যাই, বাড়ি গিয়ে দেখি যে দরজা বন্ধ। তো আমি গিয়ে একটু চেষ্টা করি, তো ডাকাডাকি করি কিছুক্ষণ, তখন খুলছে না। তখন আমি দরজা ভাঙার চেষ্টা করি, যখন ভাঙছে না তখন একটা ইয়ে নিয়ে ভেঙে করে দেখি যে দুজনে কি সুসাইড নোট লিখেছে? সেটা আমি দেখিনি। আচ্ছা, কী অবস্থায় মৃতদেহগুলো পড়েছিল? মানে একজন তো আমার বোন তো গলা জড়িয়ে নিয়ে ঝুলছিল, আর ভাগ্নেটা মৃত অবস্থায় শুয়েছিল। বলছিলাম কোন ডিপার্টমেন্টে বোন আছে, কাজ করে? আপনার বোন কিসে কাজ করে? এডিডি। আচ্ছা, কি বিষ খেয়ে মারিয়ে দিয়েছে বাচ্চাটাকে? সেটা আমি জানতে পারবো কী করে। আচ্ছা, পুলিশ কি বলছে এখন? পুলিশ কাজ করছে, আমি দেখেছি। আপনার নাম? আমার নাম কল্যাণ মাঝি। কি নাম? आइए सुनिए एडीडीए के चेयरमैन और एमएलए तापस बनर्जी ने क्या कहा। করেছে সঙ্গে তার 1 বছরের বাচ্চা কিন্তু শুনে তার কাছ থেকে বললাম 3 দিন 4 দিন আগে অফিস যখন খুললো, বিবাহ প্রণাম করলো, হাসি মুখ মেয়ে ছিল, ওরা আউটডোর আগে কাজ ছিল, আমরা ওকে ইনডোরে করে দিয়েছিলাম। এত ভালো কাজ করতো, এত সবসময় হাসি মুখ। ওর বিয়ে 2 বছর আগে আমরা সবাই মিলে গেলাম, 2 বছর আগে বিয়ে হলো, এবং সরকারি চাকরি এটা ওর। বাড়িতে কোনো অশান্তি? বাড়ি হচ্ছে এমনি শ্বশুরবাড়ি সাঁতায়, আর তোমার বাপের বাড়ি হীরাপুরে, বোধ হয় হীরাপুর যেখানে শ্যামলির বাসটা রাখে, ওইখানে ওর আশেপাশে কোথাও বাড়ি, ওইখানে ওর বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা হয়। কি জানতে পেরেছেন কারণ? না না, কারণ জানতে পারছি না, বলছে একটা কারণ, আমার মনে হয় না ওটা কোনো, ওটা এই মুহূর্তে বলা খুব মুশকিল। কী জন্য একটা মেয়ে, যার কোনো অর্থনৈতিকভাবে কোনো অসুবিধা নেই, সামাজিকভাবে কোনো অসুবিধা নেই, পারিবারিকভাবে কোনো অসুবিধা ছিল না। মা আর মেয়ে নাকি? হ্যাঁ, মা বাচ্চা, বাচ্চা ছেলে না মেয়ে আছে? বাচ্চাটা ছেলে।
ওকেও বিষ খাইয়ে ও বিষ খাইয়ে 1 বছর 2 বছর কোনো বিয়ে হয়েছিল। পারিবারিক অশান্তি বগেরা কিছু ছিল? সেটা ভাই আমাদের কাছে কোনো খবর ছিল না, কারণ 5-7 দিন আগে আমাকে এসেছিল পরমপুর দেখা করতে। তো অফিসের কলিগরাও কেউ বলতে পারছে না, যার দিন রাতের সঙ্গে কাজ করে এবং ও তো শেয়ার করতো কারোর সঙ্গে যদি পারিবারিক কোনো কিছু থাকতো। অত্যন্ত অফিসের খুব প্রিয় ছিল, নিজের কাজটুকু নিয়ে থাকতো, ইন হাউস কাজ করতো। অনেক মহিলা এসেই আছে যারা বাইরে যায়, ও মহিলা এসেই ছিল, ও বাইরে ছিল, বাইরে একটা কোনো একটা ঘটনার জন্য। তার মহিলাটার নাম কি আছে? বৈশাখী মাঝি, বেশি বয়সও নয়, রেডিওতে কাজ করতো। এটা পার্মানেন্ট স্টাফ ছিল, পার্মানেন্ট স্টাফ। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547356154। सागतोड़िया स्थित ECL मुख्यालय पर मंगलवार को ECL ठेका श्रमिक अधिकार यूनियन के बैनर तले ठेका सुरक्षा कर्मियों को बोनस देने तथा तत्काल निविदा जारी उनका जॉब सुनिश्चित करने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। मौके पर महासचिव उमेश दुसाद, काजल नायक, राजेश राय, हृदय पाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सुनते हैं श्री उमेश दुसाद ने क्या कहा। हमारे बीच हैं ECL आसनसोल दुर्गापुर ठेका अधिकार श्रमिक यूनियन के सचिव उमेश दुसाद जी। आप आज जो यहाँ पर जुटे हैं आप लोग, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? हम लोग का मुख्य मुद्दा जो सिक्योरिटी गार्ड ECL में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सभी एरिया में काम कर रहे हैं, उन लोगों का बोनस नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद इन लोगों का जो टेंडर है वो टेंडर फाइनल नहीं किया जा रहा है, कंपनी को एक्सटेंशन बार बार दिया जा रहा है सब, जिससे जो सिक्योरिटी गार्ड है ये दुविधा में है कि हम लोग का काम बचा हुआ रहेगा ना चला जाएगा। जिस तरह से 2017 में ECL ने बिना कुछ कारण बताए अचानक बैठा दिया था इन लोगों को, और इन लोगों का बहुत जोरदार आंदोलन करना पड़ा। और अभी उन्हें लिया गया आंदोलन के बाद उन्हें लिया गया या नहीं? आंदोलन के बाद इन लोग को फिर से लिया गया, लेकिन अभी भी ये लोग दुविधा में है कि ये 2 साल के बाद में इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों का कि हम लोगों का हाँ हम लोगों को इतना हम सिक्योरिटी में नहीं है ना। तो इन लोगों का जो है कि इन लोग चाह रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों का जल्दी से जल्दी फिर से काम हो, ये निश्चित हो पाए। कितने लोग होंगे? हम लोग सभी एरिया से मोटा मोटी यहाँ पर 400-500 व्यक्ति होंगे। ये किसी इसके साथ माने ये जो आपका बहुत सारे जो सिक्योरिटी के जो संगठन चल रहे हैं, संगठन मतलब कि उनका एक शाखा है जिसके मार्फत सभी सिक्योरिटी लोग उसके साथ हैं या अलग अलग है? हम लोग सभी ECL में जितना भी सिक्योरिटी गार्ड हैं सभी लोग साथ में ठेका के अंतर्गत। ठेका के अंतर्गत 26 नवंबर को जैक द्वारा बुलाई गई हड़ताल के विरोध में काजोड़ा एरिया के परासकोल कोलियरी ईस्ट में KKSC की ओर से सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मलय घोष, हरेंद्र गिरी, विजय सिंह, महेंद्र हरिजन, राजीव गिरी, सुदर्शन सिंह, शमशेर अहमद और काजोल माझी आदि मौजूद रहे। घर का मुखिया अगर बदमाशी करता है तो घर के बाकी सदस्य घर में आग लगाया नहीं करते। घर के मुखिया को ठीक करने की और भी कई एक तरीका है, उस तरीका को हम लोग अपनाते हैं। हम लोग अपने घर में भी कभी कभी देखते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जो और भी राजनीतिक दल 26 तारीख को स्ट्राइक बुलाए हैं, वो अपने देश के हित में नहीं सोच रहे। आज की केंद्र की सरकार जिस तरह की नीति अपना रही है, उस नीति के तहत देश को बर्बाद करने का नीति अपना रही है। और उससे निपटने के लिए
आज के इस पीठ को, इस कोयलांचल को, इस कोलियरी को जिस तरह से केंद्र की सरकार प्राइवेट के हाथों में दे रही है, निजीकरण की तरफ ले जा रही है, और वो चाहती है इस तरह का पीठ बंद हो जाए, केंद्र की सरकार चाहती है बंद हो जाए। अगर आप एक दिन काम बंद करते हैं और काम बंद करने की वजह से आपके पीठ का उत्पादन बंद होता है और उस उत्पादन की कमी को दिखला करके केंद्र की सरकार आपका पीठ को बंद करेगा, जो उनकी मंशा है। भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल प्रदेश के महामंत्री उज्जवल मुखर्जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आगामी 26 नवंबर 2020 को आहूत चक्का जाम या किसी भी तरह की बंदी हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस नहीं है। यह बंदी पूर्ण रूप से राजनीतिक है। यही कारण है कि बीएमएस किसी राजनीतिक बंदी का समर्थन नहीं करता है। मजदूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए बीएमएस हमेशा सकारात्मक संघर्ष के माध्यम से आंदोलन करता है, किंतु राजनीतिक लाभ के उद्देश्यों से बुलाई गई किसी हड़ताल या बंदी का समर्थन बीएमएस न कभी किया है और न कभी करेगा। बीजेपी की सह पर सीआईएसएफ करवाती है कोयला चोरी। यह आरोप युवा तृणमूल के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव ने लगाया है। मंगलवार को उषाग्राम स्थित अग्निकन्या भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा की ओर से तृणमूल पर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में कहा है कि भाजपा लोकप्रियता के लिए सिर्फ सस्ती राजनीति कर रही है। झूठे आरोप लगाकर तृणमूल के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए जाति और धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रही है। युवाओं को बहकाया जा रहा है। आसनसोल से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार आसनसोल सुकांतो मैदान स्थित 4 नंबर बोरो कार्यालय परिसर में बोरो ऑफिस की ओर से ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा एवं प्रशासक बोर्ड के प्रशासक जितेंद्र कुमार तिवारी के प्रयास से रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन प्रशासक बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय ने रक्तदाता प्रमाण पत्र देकर किया। इस मौके पर पूर्णशशि राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में रक्त की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु होने नहीं दिया जाएगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकल्प ली है कि राज्य में रक्त की कमी होने नहीं दिया जाएगा। उनके अनुप्रेरणा से विभिन्न सामाजिक संगठन, क्लब, एनजीओ की ओर से प्रत्येक दिन कहीं न कहीं रक्तदान शिविर लगाया जाता है। आसनसोल के छेलीरंगल स्थित सीएमएस कार्यालय के सभागार में एआईटीयूसी की ओर से एक बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एआईटीयूसी के जिला महासचिव आरसी सिंह ने कहा कि आगामी 26 नवंबर को केंद्र सरकार के जन विरोधी, श्रम विरोधी एवं नई शिक्षा विरोधी नीति के खिलाफ देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन हड़ताल बुलाई है। हड़ताल को सफल करने के लिए एआईटीयूसी की ओर से सभी कोलियरी में बंद के समर्थन में प्रचार प्रसार किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ इलाकों में प्रचार नहीं हुआ है, उसके लिए प्रचार करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इलाकों में माइकिंग करके आम लोगों को जागरूक करना होगा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए इस हड़ताल को सफल करने के लिए आम लोग भी सामने आए। इस मौके पर प्रभात राय, सिंचन बनर्जी, गुरुदास चक्रवर्ती, जीएस ओझा, अखिलेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, राजू राम आदि उपस्थित थे। आदिवासी संथाल जाति की परंपरागत धार्मिक सांतोरी तेलकुपी बरनी घाट बचाओ आंदोलन तथा तेलकुपी बरनी घाट पुनः प्रतिष्ठा के 60 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सांतोरी तेलकुपी बरनी घाट पर मंगलवार को रघुनाथपुर काशीपुर विधानसभा के स्वाधीन भारत के प्रथम विधायक, लेखक, समाज सुधारक स्वर्गीय बुधन माझी के आवक्ष मूर्ति का उद्घाटन राज्य के अनाग्रसर श्रेणी कल्याण मंत्री संध्या रानी टुडू एवं जिला सभाधिपति सुजय बंदोपाध्याय ने किया। मौके पर रघुनाथपुर विधायक पूर्णचंद्र बावरी एवं आदिवासी लड़ाकू नेता राजन टुडू, बेल टुडू आदि सहित उपस्थित रहे। অলরেডি প্রসেস হয়েছে, কিন্তু আমাদের যে গত বছর প্রায় 1 বছর 1.5 বছর হতে চলো যে শিক্ষক নিয়োগের যে বার্তাটা বর্তমান সরকার দিয়েছিল সেটা পূরণ হয়নি।
কি করবেন যদি এখন দেখা গেছে যে বার্নিঘাটের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে মানে বেশ কিছু টাকা অনুমতি হয়েছিল, হ্যাঁ, তারপর সেই টাকা আবার ফেরত চলে যায়, এই বিষয়ে কি বলবো, কারণটা কি? হ্যাঁ, প্রাথমিক একেবারে প্রথমে যে টাকাটা প্রায় 76 লাখ টাকা এসেছিল, ওই টাকাটা প্রায় 28 লাখের মতো কাজ হওয়ার পর ওই টাকাটা প্রশাসনিক এবং ঠিকাদারের গড়িমসে ওই টাকাটা ফেরত চলে যায়। পরবর্তীকালে আবার টাকা এসছে এখানে, যেমন এই বাউন্ডারির কাজগুলো হচ্ছে, এখানে শেডের কাজ হবে, তারপর এখানে ঘাট নির্মাণ হবে, এখনো কাজ চলছে, আর কি কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন আদিবাসী মায়েরা আমাদের আছেন, আমি আপনাদের হয়ে বলছি, আপনারা আমাদের আধার। যে কোনো জল রাখার জন্য যখন এই পাত্র যেমন আধার দরকার, জলটা কিছু না। मंगलवार को 55 नंबर वार्ड अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर चक्रवर्ती ने आसनसोल पोस्ट ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा और डेप्यूटी कंट्रोलर से बातचीत की। 55 नंबर वार्ड के लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, मगर बहुत से गरीब लोगों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है। राशन ना मिलने से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए टीएमसी नेता शंकर चक्रवर्ती ने आसनसोल पोस्ट ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा गया और अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में बात की।